اچھا جی سر، آپ نے کوئی ای میل بھیجی ہے ابن مریم؟ اور جی سر میں نے ای میل کی ہے، میں بس کوئکلی اس کو ریفر کروں گا، میں اس میں بہت ڈیٹیلز نہیں دوں گا کیونکہ بس اس کے اندر ریفرنسز ہیں، ڈیٹیل میں نے غالب جو ہیں ان کے چینل پہ کر چکا ہوں. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو میک اے ریفرنس ان ریگارڈس ٹو سعودی عربیہ. جی چلیں میں اس کو کھول لیتا ہوں. آپ کی یہ پریزرویشن آف قرآن کی آپ نے اٹیچمنٹ بھیجی ہے، از دیٹ دی ون؟ جی ایگزیکٹلی اچھا چلیں میں اس کو اسکرین شیئر کر رہا ہوں، گیو می اے مومنٹ. اور جو آپ نے ساتھ آبویسلی مائک از یورس. اس میں سر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جہاں ابھی لوگوں کے لیے باتیں جو ہیں باعث اچنبہ ہیں کہ جو چینجز سعودی عربیہ میں کی جا رہی ہیں اور اسٹیٹ اپنی جو ہے جورسڈکشن کو واپس وڈرا کر رہی ہے لوگوں کے پرسنل معاملات میں سے، جیسے نماز پڑھنا ہے یا محرم کا معاملہ ہے، تو وہاں ایک اور چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک باقی امت نے کبھی بھی سعودی عربیہ سے خود کو الائن نہیں کیا کہ what they do think about the preservation of قرآن. تو آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں زیادہ واضح ہونا شروع ہوں گی اور لوگوں کو اس معاملے پر بھی کافی سمجھ لیجیے شوق لگنے کا چانس امکان ہے کہ سعودی عربیہ بھی کم از کم جو پریزرویشن آف قرآن کا جو پوری دنیا میں کانسیپٹ ہے مسلم کمیونٹی میں، سعودی عربیہ اس سے الگ کھڑا ہوا ہے، ہمیشہ سے الگ کھڑا ہے. لیکن کبھی بھی ان کی بات کو، کیونکہ ہم جا کے ان کی عربک تفسیریں نہیں پڑھتے ہیں دیٹ واٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ، تو وہ میں تھوڑا سا اس پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جو پریزرویشن آف قرآن مسلمس کلیم کرتے ہیں وہ کلیم خود قرآن میں بھی موجود نہیں ہے. دیٹ آئی وانٹ ٹو شو یو کہ وہ کلیم خود قرآن میں بھی موجود نہیں ہے جو یہ اس میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسٹینڈرڈ نیریٹو یہ ہے کہ اس کا حرف جو ہے وہ پریزرو ہے محفوظ اور ہاں محفوظ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے. تو اس کو بنیاد بنا کر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اٹ از پریزروڈ اور اٹ از انچینجڈ. تو میں اس کو دکھانا چاہوں گا کہ قرآن میں یہ بات کہیں نہیں لکھی ہوئی پائی جاتی. کائنڈلی اسکرول ٹو دی نیکسٹ پیج. اس میں جسٹ کوئکلی چیپٹر صفات ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، چیپٹر جن ہے، چیپٹر حجر ہے. 3 جگہوں پر یہ سبجیکٹ زیر بحث آتا ہے کہ رسول اللہ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ شیاطین آپ کے اوپر نازل کرتے ہیں قرآن کو، یا کچھ جنات کا الہام ہے، یہ کوئی خدا کا کلام نہیں ہے. اس کے آرگیومنٹ کے جواب میں کم از کم 3 جگہ قرآن اس بات کو مینشن کرتا ہے کہ جب قرآن آسمان سے لایا جاتا ہے تو ان کو شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں اور سٹار جو ہیں ایز میزائلز ان کو مارا جاتا ہے تاکہ شیاطین کو اس پورے پروسیجر سے دور رکھا جا سکے when angels are taking it from the sky down onto Prophet Muhammad. اب یہ آرگیومنٹ ہے پورا. اس آرگیومنٹ کے بیچ میں کائنڈلی اسکرول ٹو دی نیکسٹ ون، میں اس آیت پہ ڈائریکٹلی جاتا ہوں. جی ڈاؤن. ہاں اب آپ یہ دیکھیے اس پورے آرگیومنٹ کے بیچ میں کہ آسمان سے قرآن پروفٹ محمد پہ آ رہا ہے اور ان کو شہاب ثاقب جو ہیں شیاطین کو مارے جا رہے ہیں کہ وہ اس پروسیجر میں انٹرپٹ نہ کریں. اس پوری بحث کے کہیں بیچ میں ایک آیت یہ لکھی ہوئی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو یہاں جس حفاظت کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ قرآن کی کمپائلیشن مراد نہیں ہے. یہاں پر مراد ہے وہ حفاظت جو آسمان سے زمین تک آنے میں ہوتی ہے. اب کسی بھی جواب کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ سوال کو سمجھا جائے. اگر تو قریش مکہ یہ آرگیومنٹ رکھتے سامنے کہ او پروفٹ محمد آپ جو کچھ بھی ہمیں سنا رہے ہیں آپ کی وفات کے بعد یہ پوری دنیا تک نہیں پہنچے گا اور یہ ضائع ہو جائے گا، اور اگر یہ آیت اس جگہ رکھتی جائے دین اٹ میک سینس کہ آپ اس میں سے قرآن کی پریزرویشنز کو کلیم کر سکیں. لیکن قرآن یہ بات نہیں کہتا، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کو کہا جاتا ہے کہ آپ مجنون ہیں اور آپ پر جو ہے شیاطین کی طرف سے الہام ہو رہا ہے. اس کے جواب میں یہ کہتا ہے قرآن کہ ہم نے اس کو نازل کیا کر رہے ہیں، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اور یہاں جو سیکنڈ لیفٹ سائڈ پہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے پورشن اس پوری بحث کا، وہاں یہ لفظ موجود ہے وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. تو یہاں اس آسمانی حفاظت کی بات ہوتی ہے نہ کہ زمینی حفاظت کی کمپائلیشن کی بات ہے. کمپائلیشن کے اوپر قرآن کبھی بات کرتا ہی نہیں ہے. اب مسلم کمیونٹی کی طرف سے انکلوڈنگ میں کہوں گا جاوید غامدی صاحب بھی، کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ اس پوری بحث کو حذف کر دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور ایک آیت کو یہاں سے پک کرتے ہیں اور اس سے پریزرویشن آف قرآن کے اوپر اپنا آرگومنٹ بلڈ اپ کرتے ہیں. پھر وہ حدیثیں جو آتی ہیں ان کا بھی انکار کرتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن اس کو کلیم نہیں کرتا. اب یہ یہاں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے
मैंने यहाँ रेफरेंस दिए किंग फहद प्रिंटिंग प्रेस ऑफ सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया खुद पूरे एहतमाम के साथ बहुत सारे कुरान जारी करता है, वो कोई एक कुरान जारी नहीं करता। एंड व्हेन आई यूज्ड टू लिव देयर, मैंने सऊदी स्कॉलर्स के साथ ये बात पूछी थी कि सारे कुरान तो मुख्तलिफ हैं आपस में, सो आप परफेक्ट प्रिजर्वेशन को कैसे समझते हैं? तो उनका एक जवाब था कि हमारे नज़दीक ये कोई प्रॉब्लम नहीं है और वी आर ओके विद इट। अगर आपके स्कॉलर्स आपको परफेक्ट प्रिजर्वेशन का कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं तो आप उन्हीं से पूछिए। हमने कभी इस चीज़ को ना क्लेम किया, ना कुरान इस चीज़ को क्लेम करता है, और हमारे पास मुख्तलिफ कुरान हैं जो हम ऑफिशियली उनको शाया भी करते हैं। तो ये सारे मुख्तलिफ कुरान हैं जो सऊदी अरेबिया की ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट पे मौजूद हैं। तो उसकी मौजूदगी में आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमारा कुरान जो है वो परफेक्टली प्रिजर्व है या नहीं है, ये चीजें हैं। तो सऊदी अरेबिया इस मामले में भी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ अलाइन नहीं है, और ये चीज भी वक्त के साथ जो है सरफेस पे जरूर आएगी। काइंडली स्क्रॉल टू द लास्ट वन। अब ये देखिए, ये मैं इसके एक ऊपर एक कुरान, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ अभी या एंड में पूछूं? एंड में आप पूछ लीजिए। चलें, ओके ये ओके। एक, हाँ, ये दमिश्क से शाया होने वाला कुरान है, तफसील अल किरात फी तंजील। तो इसके अंदर एक ही पेज के ऊपर जितने डिफरेंसेस आ जाते हैं कुरान के, उनको मेंशन कर दिया जाता है कि भाई ये लफ्ज में इतना इख्तलाफ है, और हर हर पेज के ऊपर तमाम इख्तलाफात को जमा कर दिया गया है। वो इंटरनेट से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं कहूंगा कि मेरे नजदीक की जो परफेक्ट प्रिजर्वेशन है ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज के अगर इसके आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो बड़े अलाइन होते। असल प्रॉब्लम इसके आर्ग्यूमेंट्स में आता है, जो कि एक सेपरेट सब्जेक्ट है, कि जहां पर ऑथर जो है कुरान का वो कुछ प्ले करता है आपके साथ। वो अपनी बात को रेफर कहीं और करता है, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में जाके उसमें तखसीस पैदा करना शुरू कर देता है। तो वहां आप उसको पकड़ लेते हैं कि आप मुझे कोई और बात बताकर लाए थे, बट नो यू आर चेंजिंग योर आर्ग्यूमेंट। तो वो प्रॉब्लम है जिसके ऊपर जाकर मैं इसकी डिविनिटी पे क्वेश्चन उठाता हूँ। लेकिन जहां तक प्रिजर्वेशन की बात है, मैं कहूंगा कि कुरान ने जब खुद भी क्लेम नहीं किया, तो अगर तो फिर ये इल्जाम कुरान को देना कि वो प्रिजर्व क्यों नहीं है, सो दैट मतलब उसके लिए आप कुरान को फिर इल्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे मुताबिक कुरान ये बात खुद करता भी नहीं है। ये सिर्फ मुस्लिम्स हैं जो क्लेम कर रहे होते हैं। सो वो दिस भी इज हम माई पॉइंट ऑफ व्यू सर। हाँ, तो आप कुछ कुछ इस पे पूछना चाहें तो सर। वो भी हमारे मेरा ख्याल सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम से ये करते हैं, जो कि मुझे एथियस्ट होने के बाद पता चला कि ये जो स्कॉलरली वर्क है मुसलमानों का आउटसाइड ऑफ आवर पार्ट, दे डोंट इवन, ये तो क्लेम ही नहीं वो करते थे। और अब मैंने देखा है कि इवन पीपल लाइक गांधी साहब एटसेट्रा, दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू दिस। मेरा ख्याल इंजीनियर साहब अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे। दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू दिस, जिस पे वो ये कहते हैं कि किरात हैं, दे माइट साउंड डिफरेंट बट दे हैव द सेम मीनिंग, which is kind of evolving the standard narrative। क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे तो हमें तो ये बड़े फख्र से बताया जाता था, एक जेर जबर भी आगे पीछे नहीं है, नुक्ता शुक्ता भी आगे पीछे नहीं है, जो कि यासिर कादरी, शबीर अली वगैरह दे स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट इट। नो, इवन उन्होंने भी कहा, यासिर कादरी जिसमें प्रॉब्लम में आ गए, जिन्होंने कहा कि ये सारे स्कॉलर्स को पता है बट वी नेवर स्पोक अबाउट इट पब्लिकली। ये तो इंटरनेट का नुकसान हुआ कि अब इनको दे हैव टू आंसर दिस, क्योंकि लोग पूछते हैं ये क्या आप बात कर रहे हैं। सो आप मुझे गांधी साहब का आपने दोस्त है, मुझे लेट मी अंडरस्टैंड गांधी साहब आर्गुमेंट। जहां तक मुझे समझ है, उनका क्या स्टैंडर्ड नैरेटिव ये नहीं इवॉल्व होके आ गया कि दीज आर डिफरेंट किरात, जो पूरे मुस्लिम दुनिया में जो इन द साउथ, इन मोरक्को वगैरह में एक ऊपर और सेंट्रल एशिया में डिफरेंट किरात यूज होती है, बट अदर देन दैट ही दैट वाज वेरी लाउजी आर्गुमेंट कि 90% तो एक ही हो रहा है। सो ओके, व्हाट अबाउट द 10%, फर्स्ट ऑफ ऑल 5%? अच्छा, लेकिन जो उसमें भी जो वो कहते हैं कि वो इट डजंट चेंज एनी मीनिंग पर से, जो कि मैंने अब्दुल्ला गोंदल ने, आई डोंट नो आपने देखी है कि काफी साइड बाय साइड रखी है जिसमें मीनिंग चेंज हो जाता है। जो सबसे फेवरेट, आई यूज द वर्ड मस्कीन एंड मसाकीन, यू नो, लाइक इट्स कम ऑन, आपने एक को मस्कीन को खिलाना है या 100 ज्यादा मसाकीनों को खिलाना है? सो आप इसको क्या उनके आर्गुमेंट में और इस आर्गुमेंट में तो मुझे समझ आ गया, आप कह रहे हैं कि कुरान खुद नहीं क्लेम करता, व्हिच इज व्हाई जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर, दे हैव नो प्रॉब्लम। हमारे यहाँ पे इंजीनियर साहब का आर्गुमेंट कहां तक यहाँ पे इवॉल्व हुआ, और ये गांधी साहब के आर्गुमेंट से आप क्यों सेटिस्फाई नहीं है? सर, गांधी साहब की जो मिजान के लेक्चर्स हैं, अगर आप उनको सुने तो मैं कहूँगा दैट इज़ द बेस्ट सोर्स टू अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि किताब में हो सकता है कि हम उनकी बात को कुछ इंटरप्रेट कर रहे हो विच ही डज नॉट वांट टू रेफर टू। उनके मिजान के ऊपर लेक्चर्स मौजूद हैं यूट्यूब पे। आई हैव लिसन टू देम फॉर आई वुड से 100 ऑफ आवर्स कि उनकी बात को मैं प्रॉपर्ली समझ सकूं।
تو उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो उसमें क्लियरली ये बात कहते हैं कि कुरान के मतलब चेंज होते हैं, वज़ू का तरीका फ़र्क हो जाता है और उसके थियोलॉजीज़ में फ़र्क आ जाते हैं। वज़ू का तरीका भी आज शिया सुन्नी में अगर डिफरेंट है, तो उसकी वजह कुरान है, ना कि उसकी वजह कोई हदीस है। तो एक रियली? कुरान के अंदर जो है वो आता है कि मसा है, क्योंकि वो ज़ेर-ज़बर फ़र्क हो जाती है। वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलिकुम, या आप अर्जुलकुम कर दें तो उससे डिफरेंस पड़ जाता है पूरी स्टेटमेंट के अंदर। लेकिन अरबी जानने वाला बता सकता है कि कौन सा कुरान गलत है और कौन सा ठीक है। बट एनीवेज़ टू कट शॉर्ट, गांधी साहब ये जानते हैं कि मतलब चेंज हो रहे हैं। गांधी साहब ने खुद इसको मेंशन किया कि मालन लुबदा और मालन लुबदा के अंदर कितना बड़ा डिफरेंस पड़ जाता है, और उन्होंने मेंशन किया कि ये क्वाइट डिस्टर्बिंग फैक्ट है कि मतलब चेंज हो रहे हैं। आप इसको ये नहीं कह सकते कि महज किरात या लहजे का इख्तलाफ है। ये खुद गांधी साहब के अपने अल्फाज हैं। तो लेकिन उसके एक बाद जो सेकंड। गांधी साहब बात कहते हैं, जी सर, नहीं गांधी नहीं, साहब उसके आप मेरे बाद ख्याल जो उधर ही जा रहे बात हैं, इस पे आप उधर ही रखते जा हैं, रहे हैं। हाँ, गांधी साहब ये बात कहने के बाद जो पॉइंट ऑफ व्यू स्टैब्लिश करते हैं, दैट इज सो मच कि आपको रिबेल करने में शायद 1 मिनट भी नहीं लगेगा। वो ये कहते हैं कि जो कुरान हमें मिला है हफ्स वाला, वो उसको तवातुर साबित है कि उसकी सनद रसूल अल्लाह तक हम मान लेते हैं। बाकी सारे कुरान को मैं ज़ईफ मान लेता हूँ कि वो ज़ईफ रिवायतें, यानी वो पूरे कुरान को भी ज़ईफ करार दे देते हैं कि फलां वर्ष का है, कालून का है, दूरी का है, सूसी जो कुरान है, वो उसको इन अ वे कहते हैं कि ये एक ज़ईफ कुरान है और ये अखबार अहाद हैं। तो मैं कहूँगा कि आप ओवरऑल भी देखें तो अगर आप एक हदीस को भी ले लीजिए, कि अगर एक ऐसी हदीस हो जिसकी सनद रसूल अल्लाह तक नहीं पहुंचती और जिसकी सनद के अंदर कोई झूठा रावी हो, तो आप उस हदीस को कबूल नहीं करते। और तो हफ्स हफ्स का जो हफ्स इटसेल्फ जो है झूठा रावी है, झूठा उससे रावी हदीस है। नहीं की जाती। और अगर आप सनद को देखें तो सनद भी आप किसी तरीके से नहीं पहुंचा सकते रसूल अल्लाह तक। दूसरी बात यह है कि क्या फिर आप जब ये कहते हैं कि इसकी सनद रसूल अल्लाह तक पहुंचती है, तो दैट मीन्स कि कुरान को साबित करने के लिए भी आपको हदीस की कोई इटसेल्फ एक चेंज चाहिए, जो कि इटसेल्फ मामला यकीनी कभी भी नहीं होता। तो आपको वेरी कुरान भी साबित गुड। करने के लिए ये बात चाहिए होती है कि देखो फलां हदीस में लिखा है कि रसूल अल्लाह ने आयत पढ़ के सुनाई थी। तो इसका मतलब है कि कुरान अपनी जगह कौल फैसल नहीं है, बल्कि वो भी हदीस का मोहताज है कि हदीस उसे टेस्टिफाई करे। सो ऑन दैट मेरी बेसिस गांधी साहब जी, कहते हैं कि सिर्फ एक कुरान जो हमें मिला है इंडो पाक में, दैट इज ऑफ द हफ्स, उसको हम एज्यूम करते हैं, मैं एज्यूम ही कहूंगा कि वो तवातुर से साबित है। बाकी तमाम कुरान जो है वो अखबार अहाद हैं, हम उनको कुरान नहीं मानते। इस पे ये गांधी साहब का आर्गुमेंट इतना यूनिक है, इस पे मेरी बहस हुई थी, मेरे ख्याल हमजा अब्बासी से हुई थी शायद ऑफ कैमरा के समथिंग। ही हम्म, द आर्गुमेंट इतना इनका बेसलेस बन जाता है, एंड आई स्पोक विद मुफ्ती अबू लैथ आफ्टर दिस एंड ही वाज लाइक रियली ये है गांधी साहब का आर्गुमेंट, एंड ही वाज लाइक नो, बिकॉज़ ही डजंट हैव द प्रॉब्लम आइदर। मुफ्ती अबू लैथ ही आल्सो हैज हम्म, कि कुरान का तो क्लेम ही नहीं है। हम्म, So, you know, that's why he's like, well, हमें तो हम्म, प्रॉब्लम ही हम्म, नहीं है, because when you remove that problem, तो you don't have the, हम्म, तो उसमें जो आपने बताया कि एक तो ऑब्वियसली हफ्स की हदीस नहीं मानी जाती, उसको झूठा रावी कहा जाता है। So if you are करेक्ट। sensing on that कि हम उस कुरान इस कुरान को इसलिए मान रहे बिकॉज इसकी सनद रसूल अल्लाह से जाके मिलती है और रसूल अल्लाह के फाइनल हम्म, खुतबे की बात की जाती है कि ही रिवाइज्ड ऑल ऑफ दैट कुरान। इज दैट द, ये जो सनद जो रसूल अल्लाह से मिलाते हैं, इज दैट द वन? इस सर इसमें एक और प्रॉब्लमेटिक फैक्ट ये है कि जैसे गांधी साहब कहते हैं कि आखिरी रमजान में कुरान को 2 दफा रिपीट किया गया उसकी यस। आखिरी किरात के अंदर, जिसको कहते हैं इन अलैना जमअहु व कुरआना। अब मैं जी। आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर 2 दफा रिपीट किया जाए, तो इसका फिर ये मतलब बनता है कि हर हर सहाबी ने एक दिन में 550 आयतें हिफ्स की, जो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ये सब चीजें। और वो भी इस फॉर्म में कि रसूल अल्लाह पढ़ रहे हैं और आप सामने बैठे हुए आयतों को हिफ्स कर रहे हो एज इफ यू आर सेविंग इन द यूएसबी। ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो और सेकेंडली और आप ये कहें दो। कि जिन लोगों को यस। पार्शों में कुरान याद है, ये कैसे मुमकिन है कि मैं आपको ये कहूं, जबकि आयतों के नंबर भी नहीं है, कि फलां आयत से पहले इस आयत को रख दो और उस आयत को निकाल के उसके बाद कर दो। ये अरेंजमेंट माइंड में करना मुमकिन नहीं है। जबकि गांधी साहब कहते हैं कि 15 दिन में एक कुरान रसूल अल्लाह ने पढ़ के सुना दिया आखिरी रमजान में। सो दैट मीन्स कि सहाबी जो है वो यस। 550 आयतें एक वक्त में याद कर रहे हैं, विच इज टोटली बेसलेस क्लेम। इसको आप साबित नहीं कर सकते। दूसरी बात जो करते हैं वेरी क्विकली, हाँ, गांधी यही साहब भी यही करते हैं और यही जुनैद आर्गुमेंट। मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी करते हैं। हाँ, इस जब ये आर्ग्यूमेंट इनके सारे खत्म होते हैं, तो एक बात ये करते हैं जिसपे मैं कहूंगा कि वो इतना एक जायंट क्लेम होता है, जिसको अगर आप
मैं कहूंगा कि वो एक राह फरार के सिवा कुछ नहीं है। गांधी साहब कहते हैं इस पे इजमा है। तो मैं ये कहूंगा कि पहले तो ये बताइए कि क्या आपने वेरीफाई किया है कि आपकी पैदाइश से पहले 1500 साल तक एक एक इंसान यही बात कहता रहा है? हाउ कैन यू वेरीफाई दैट? तो ये बात इजमा का क्लेम रखना, दैट इज टोटली एब्सर्ड क्लेम। ये तो अगर कोई आसमानी खुदा आपको बता दे कि भाई इजमा है तो आप बता सकते हैं, इंसान नहीं बता सकता कि इसके अंदर कोई इजमा नहीं है। दूसरी बात यह है कि गांधी साहब इस बात को रिफ्यूट करते हैं कि जानी की सजाए मौत हो सकती है, हालांकि इस पे कंसेंसस है। अब मैं ये कहूंगा कि गांधी साहब वहां क्लेम ये करते हैं कि इजमा सिर्फ एक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, वो हक और बातिल को स्टैब्लिश नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें इजमा से साबित है कि यहूद ने इनकार कर दिया ईसा का, लेकिन इससे कोई हक या बातिल साबित नहीं हो रहा, एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। तो मैं ये बात कहूंगा कि कुरान की सदाकत में फिर गांधी साहब जब इजमा को लेकर आते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि इजमा को आप साबित कैसे करेंगे? हाउ वुड यू प्रूव कि इजमा है? तो दे विल अगेन गो बैक टू हदीस कि हम हदीसों से इजमा को साबित कर रहे हैं। सो ये एक सर्कुलर आर्गुमेंट, इट्स लाइक रनिंग ऑन अ हैमस्टर व्हील कि भाई आप कुरान की सदाकत में हदीस को लेकर आएंगे और हदीस खुद नलीफाई करती है कुरान को, तो उसके जवाब में फिर आप कुरान वापस लेकर आएंगे। तो इट्स लाइक अ सर्कुलर आर्गुमेंट, यू आर रनिंग ऑन अ हैमस्टर व्हील। आप इसको साबित नहीं कर सकते, स्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो मिर्जा साहब जब आर्गुमेंट्स खत्म होते हैं वो कहते हैं कि उम्मत का इजमा है, गांधी साहब कहते हैं उम्मत का इजमा है। तो फिर मैं कहूंगा कि ये टोटली एब्सर्ड क्लेम है, इसको आप साबित कैसे करेंगे? इजमा क्यों है? ये इजमा के पीछे भी लॉजिक होनी चाहिए ना। या दैट डजंट मेक एनी सेंस। चलो, बहुत शुक्रिया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।